So hello everyone, welcome to EduTap. And guys, first of all, I really apologize for the delay in this session of Union Budget of 2021-22 highlights. So guys, when I talk about this session, in this session I will be discussing with you this budget in a very crisp form. That is, main highlights of this budget will be discussed here. The second important thing will be, for the detailed video within coming week, I will be discussing with you the detailed budget analysis. Yes guys, the detailed budget analysis will also be discussed with you. Now guys, when I talk about this budget, so this budget, this emojis describe this all. For some people it was a confusing budget, as well as it was something they were expecting. But for some people this budget was like that, they were not expecting. They were bit angry on the government because they were not expecting. They were expecting some things which has not been there in this budget. Now, to get the PDF of this budget, guys, kindly subscribe to our Telegram channel, the link for which is given in the description below. Now, when I talk about the introduction of this budget, there are three very common terms I think most of you should know, but if you don't know, then this is a common thing that you should know. The first one is, the budget is basically known as the annual financial statement. The second important thing is, this is the second time that a paperless budget has been presented in the independent India, and due to COVID pandemic, the other important thing here is that this is, if we talk about this budget, so in this budget, guys, basically the government has focused on a vision. The government has focused on a vision, that is at India at 100. The second important thing is, most of the programs, because in budget we always used to have a intuition that the new programs as well as new initiatives will be launched here. But here this was something new. These are the initiatives that have been mentioned here. Most of those initiatives have been launched 3 to 4 months back, which the budget is basically talking about. Now when I talk about the first thing, okay, introduction part में, तो budget का main introduction कैसे हुआ? The first term that was coined here was the Amrit Kal. That is, now we are basically visioning from India at 75 to India at 100. The second important thing is, what is the vision? This vision is all about, we are basically focusing on growth along with inclusive welfare for all the people, that is youth, women, farmers, SC community as well as ST community. Now, how we will be focusing on this thing, how this growth will be inculcated? For that specific thing, the main focus will be on promoting technology enabled developments along with the focus on climate action, which means environmentally friendly also, as well as the second important thing is, we are focusing more on technology in this budget. Now guys, how this focus or how this technology will be promoted? For that purpose, this budget has 4 priorities. So this is something important. The 4 priorities that have been set up on this budget are PM Gati Shakti. If you are going through the news, October 2021 mein this was released. This PM Gati Shakti initiative was launched. The second is focusing on inclusive development. Inclusive development simply means that all the sectors, agriculture, infrastructure, industry, MSME, all of them are now discussed or clubbed under this inclusive development priority. The next one is financing of investment. How finance will be managed? That is financing of investment. And to increase the productivity, there is one very important thing mentioned here. Productivity enhancement is the goal with investment, but the focus will be on sunrise, that is new industries, energy transition, as well as focusing on climate action, which means environment is also being catered in this budget. Now guys, the very important information, when the budget was presented, the common question or the most expected question from the budget session is the GDP projection of India. So here the projection is said that it is same as the first advanced estimate, that is 9.2% for the year 2021-2022. The second important information is about the PLI schemes. So PLI schemes, in the previous budget, some PLI schemes, that is more sectors were included in the PLI scheme. But here it says that now how it will help in the growth of the economy. For that purpose, it says 60 lakh new jobs will be created under the 14 sectors of PLI scheme. Along with that, the additional production of 30 lakh crore can be created by this PLI sector. So this is a very important information
this data of 60 lakh new jobs as well as 30 lakh crore is important for our examination. Now, when I talk about this PM Gati Shakti, the first priority is on PM Gati Shakti. तो PM Gati Shakti इनिशिएटिव अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ था, ठीक है. इसके कुछ 7 पैरामीटर्स हैं. इफ यू गाइज नो, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है. इट विल बी अ रिविजनर फॉर यू. तो PM Gati Shakti के आपने मुझे 7 पैरामीटर्स या 7 सेक्टर जिस पे ये फोकस करता है, you have to tell me in the comment box. Now, the important thing, what is this Gati Shakti initiative? It is basically a master class plan for modern infrastructure, which means everything related to infrastructure has been discussed under a head of PM Gati Shakti. ठीक है. तो पहला हेड कौन सा है? The first head is the road sector. So road sector, the first major announcement that was made in this budget is that is 25,000 kilometers of national highways will be completed. The very important thing here that you guys should know is that for this purpose, a funding of rupees 20,000 crores will be mobilized, but here the method will be innovative ways. So here the finance minister has not specified whether it will be done on PPP model, government will be funding this thing, or private sector will be funded here. So it has been said that some innovative ways will be done through which the public resources will be utilized here for funding this national highway completion. Then for logistic interface, it said that unified platform will be created, and for stack mobility, open sources will be created. The second sector is our railway sector. So in railway sector, the first one is that postal and railways network will now be integrated, okay, so that their network would be enhanced. The second one is the one station, one product initiative. This is a very important thing to remember here, guys. One station, one product, इसका मतलब क्या है? We want to promote here not the railways itself, but we want to promote tourism, as well as we want to promote the specificity of that specific destination, which means a specified project that is linked to some stations will be promoted under this one station, one product initiative. The next one is for Vande Bharat trains. 400 new trains will be started in the upcoming years. Then a very important thing to remember here is recently, guys, a railway accident has taken place. Okay. Now here the question was on the government is that what about railway safety? What the government is doing on railway safety? So to address this issue has also been addressed in this budget, which says that 2,000 kilometers of railway networks will now be provided safety. So safety कैसे provide होगी? कवच से. So simple remember, कवच मुझे किसके लिए चाहिए? ताकि मुझे एक सेफ्टी मिल सके. ठीक है. If I talk about my coat, ठीक है, सिंपली कोट की बात करें तो कोट मैंने क्यों डाला है? ताकि मुझे ठंड कम लगे. ठीक है. तो इसी तरह से याद रखना, कवच हमने क्यों डाला है? ताकि रेलवेज को सेफ्टी मिले. ठीक है. और ये एक इंडिजीनियस इनिशिएटिव है. That is for which purpose this railway safety issue has been addressed here. Then guys, the next one is about the connectivity, that is road transport or the multimodal connectivity. It says that the multimodal connectivity has to be provided between urban transport as well as railway stations. So it is again an integration approach has been used here. Then a national ropeway development plan is being this. So we will discuss this national ropeway development plan within few seconds. हम इसको discuss करते हैं क्या है. और कैपेसिटी बिल्डिंग को भी हमने वी हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इफ आई टॉक अबाउट हाउ इट विल बी डन, सो द बजट सेज दैट 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स will be set up, which is basically working on multi-modal logistic facilities, and they will be set up in the next 3 years. So this is how the multi-modal connectivity will be promoted. The next one is, guys, that is your national ropeway project. तो देखो, why we need this project? So most of us might be feeling कि sir road connectivity better हो जाएगी, alternate source of road मिल जाएगा. But guys, the main focus here is promoting the tourism sector. क्योंकि देखो कुछ places इंडिया में ऐसी हैं जहां पे ना तो आप थ्रू रोड कनेक्टिविटी पहुंच पा रहे हो और ना ही थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी वहां का इतना अच्छा नहीं है. सो उन टूरिस्ट प्लेसेस को कैसे प्रमोट किया जाए, so for that purpose the government has launched this पर्वतमाला, that is national ropeway development program. ठीक है. यहां पे 8 ropeway projects, there are 8 ropeway projects which will be the contract for which will be given, which will cover the length of 60 kilometer. ठीक है. So this is about the national ropeway development
project or the Parvatmala initiative. Now guys, let's move to our second priority, that is inclusive development. और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, which has been highlighted. ठीक है, फार्मर्स प्रोटेस्ट भी हुआ था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा हाईलाइटेड भी था पिछले कुछ ईयर में. नाउ हियर वन थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इट सेज देयर इज अ resilient growth in the agriculture sector in spite of pandemic. So this is a very important thing, and it says the food grain production has enhanced well and it has recorded a very good maximum amount of procurement. So which is very much important, food grain production record. Now guys, the other thing that has been highlighted is regarding the MSP. तो MSP की बात की गई है. So MSP is an issue, that is farmers are protesting कि MSP law पे भी कुछ ना कुछ किया जाए. So here this budget says that 2.37 lakh crore rupees has been directly payments has been made to around 163 lakh farmers in the form of MSP. So this is basically government is saying हम MSP पे काम कर रहे हैं. ठीक है. The second important thing that has been highlighted here is the Ken-Betwa river linking project, जहां पे क्या बात की गई है कि 9.1 लाख. तो बेसिकली यहां पे बात की गई है आपकी इरिगेशन की. So irrigation is a big problem in India. ठीक है. For that purpose, what this budget says to provide irrigation. ठीक है. This Ken-Betwa link project has basically been interlinked. So 9.1 lakh hectare को ये farmland को irrigate करेगा. This is how this Ken-Betwa link project is being linked here. Now, the very important thing, as I have discussed this budget, starting में मैंने क्या डिस्कस किया, टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. तो वही चीज एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हाईलाइट की गई है. कैसे? This is that the digital and high-tech services will be provided to farmers in the PPP mode. Along with that, next technology, ठीक है, हाउ टू इंक्रीज. आप कहते हो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, तो बजट ने भी बोला कि किसान ड्रोन्स को यूज किया जाए सो दैट फार्मर्स को हेल्प प्रोवाइड की जा सके. Along with that, it says that there will be launch of funds which will basically be a capital to finance. तो आप क्या करोगे, कैपिटल को फाइनेंस से ब्लेंड करना चाहते हो और आप चाहते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप शुड ग्रो. सो यू वांट दैट द स्टार्टअप शुड ग्रो इन एग्रीकल्चर व्हिच विल लीड टू एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. सो दिस वाज अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर गाइस. द नेक्स्ट वन इज योर, अच्छा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो ये आपको याद रखनी है, दैट इज योर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. ठीक है. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू माइट हैव नोन दिस अबाउट दिस आल्सो कि 2023 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. और मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए, मिलेट्स को प्रोक्योर एज वेल एज उसको एनहांस करने के लिए भी दिस बजट हैज टॉक्ड अबाउट. देन इज गाइस, द नेक्स्ट सेक्टर इज योर एमएसएमई सेक्टर. ठीक है. सो एमएसएमई सेक्टर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज बीन हाईलाइटेड हियर इज, आपने देखो ये तीनों के तीनों, इफ यू आर कंसिस्टेंटली लुकिंग एट द पीआईबी सेशंस और पीआईबी को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो पीआईबी में ना ये चीज डेली मेंशन हो रही थी. ई श्रम पोर्टल, एनसीएस, असीम पोर्टल, सो दे वर बेसिकली बीइंग हाइलाइटेड, डिस्कस्ड इन दिस पीआईबी, कंसिस्टेंटली डिस्कस हो रहे हैं पीआईबी में. उसी चीजों को कैसे इस बजट में एक्सेलरेट किया गया. दिस सेज दैट नाउ दीज इनिशिएटिव्स विल बी इंटरलिंक्ड. सो इंटरलिंकेज विल बी क्रिएटेड अंडर दिस उद्यम ई श्रम असीम पोर्टल. The next important thing is ECLGS, again a very important scheme. ठीक है. पिछले 2 साल से बहुत ही स्कीम न्यूज में चल रही है, that is the emergency credit line guarantee scheme ECLGS. Now it has been basically extended. So for how much long? The scheme has been extended till March 2023. The other important information to remember here is guys, देखो स्कीम तो एक्सटेंड कर दी और क्या किया गवर्नमेंट ने, कवरेज भी एक्सटेंड कर दी. तो कवरेज कैसे एक्सटेंड की है, 50,000 करोड़ से 5 लाख करोड़. द कवरेज हैज बीन एक्सपेंडेड. ठीक है जी. फिर उसके साथ एक और स्कीम थी यानी कि CGTMSE स्कीम, क्रेडिट गारंटी ट्रेड फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस. हियर इट सेज द एडिशनल क्रेडिट ऑफ ₹2 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड फॉर द रीवैम्पिंग ऑफ द स्कीम. देन गाइस, न्यू इनिशिएटिव की बात की गई थी. तो एमएसएमई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पता क्या होता है, यानी कि परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस किया जाए. सो फॉर दैट पर्पस दिस न्यू इनिशिएटिव, द न्यू प्रोग्राम, रैंप प्रोग्राम. तो याद रखो, रैंप वॉक करते हो ना, तो एमएसएमई को भी गवर्नमेंट कर रही है, रैंप वॉक करवा रही है. तो कैसे करवाएगी, उसका नाम क्या है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस. ठीक है. आप रैंप वॉक करके हम आपको 6,000 करोड़ रुपया देंगे 5 साल के लिए, ताकि एमएसएमई सेक्टर रैंप वॉक करे और काफी ज्यादा एनहांस हो जाए. तो दिस इज हाउ यू कुड रिमेंबर दिस रैंप प्रोग्राम. फनी वे है पर याद करना इजी है ना. तो रैंप क्या करना है, हमें अपने आप को एक्सेलरेट ही तो करना है. तो यही चीज यहां पे की है गवर्नमेंट ने थ्रू द लॉन्च ऑफ दिस रैंप प्रोग्राम.
ठीक है। नेक्स्ट सेक्टर इज एजुकेशन। तो एजुकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, तो उसके ही कुछ ग्लिम्स हमें इस बजट में दिखे हैं। ठीक है, हाउ वी कैन से दैट थिंग, we want to promote digital education because due to COVID pandemic, digital education, we are focusing that it will be the new method. The new generation has to basically focus on digital education. For that purpose, digital university is proposed that it will be launched. The second important is so that कि आपका डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट हो सके। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी तभी प्रमोट होगी ना अगर आपका डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट होगा। सो फॉर दैट पर्पस दिस देश स्टैक पोर्टल, दैट इज डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड पोर्टल विल बी लॉन्च। आप स्किल डेवलपमेंट भी करोगे एज वेल एज डिजिटल एनहांसमेंट भी करोगे। दिस इज दिस देश पोर्टल। देन इज गाइस डिजिटल टीचर्स को आप चाहते हो हाई क्वालिटी ई कंटेंट शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू डिजिटल टीचर्स। सो डिजिटल टीचर बिकॉज डिजिटल फॉर्मेट में है तो कंटेंट शुड बी वेरी गुड, दैट इज डिजिटल कंटेंट इज प्रमोटेड हियर। देन गाइस फॉर स्टार्टअप सेक्टर इट सेज दैट फोकसिंग अगेन ऑन ड्रोन। ठीक है, ड्रोन को एज अ सर्विस यूज करो, विच मीन्स द एरियाज वेयर एजुकेशन कुड नॉट बी प्रोवाइडेड। कुछ एरियाज इंडिया में ऐसे हैं जहां पे आप एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो व्हाट गवर्नमेंट वांट्स कि आप ड्रोन को एज अ सर्विस यूज करो सो दैट एजुकेशन कुड रीच टू द लास्ट माइल पीपल। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट द ड्रोन एज अ सर्विस इनिशिएटिव। ठीक है, then about science and mathematics, so 750 virtual labs will be there as well as skilling and stimulated learning environment will also be created. This was about education sector. ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे टैग याद रखो, स्मार्ट इंडिया विद क्वालिटी स्किल। सो स्मार्ट इंडिया कैसे बनाना चाहते हो आप? चाहते हो टेक्नोलॉजी से ही स्मार्ट इंडिया बनेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट हेल्थ सेक्टर। सो हेल्थ सेक्टर में गाइस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ टाइम, उसी को ही नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को आप चाहते हो कि रोल आउट किया जाए, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए अंडर द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है जी, फिर आता है आपका द न्यू प्रोग्राम दैट इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक बहुत ही बड़ा इशू निकल के आया था जब कोविड की बात हुई थी। ठीक है, द पीपल वर सेइंग कि हम लोग कुछ लोग डिप्रेस हो रहे थे, तो मेंटल हेल्थ को कंसीडर नहीं किया जाता था, इट वाज कंसीडर्ड एज अ टैबू इन इंडिया। तो उस चीज को गवर्नमेंट कैसे कैटर कर रही है? गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। हाउ इट विल बी लॉन्च्ड? द इंपॉर्टेंट हियर इज 23 tele-mental health centers of excellence will be included here. The two important things that you should remember, nodal center कौन सा है? निम्हांस। एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट कौन देगा? इट इज IITB Bangalore, that is International Institute of Information Technology Bangalore. So these two informations are guys really important when I talk about the National Tele-Mental Health Program. Along with that, when I talk about आशा वर्कर्स की हम बहुत बात करते हैं, we are discussing about आशा वर्कर्स. So here this सक्षम आंगनवाड़ी initiative is basically being focused about जहां पे हम क्या करोगे, we will integrate the architecture of schemes related to आशा वर्कर्स. तो यहाँ पे कौन से है? मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0, मिशन पोषण, इनको आप इंटीग्रेट करना चाहते हो. Along with that, the government says in this budget that 2 lakh आंगनवाड़ीज will be upgraded to the सक्षम आंगनवाड़ीज. ठीक है, so सक्षम आंगनवाड़ीज में 2 लाख आंगनवाड़ीज को प्रमोट किया जाएगा. Now guys, the first important thing, बजट में स्कीम अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो here in this health sector the budget outlay has been presented for this 4 important schemes जो कि सक्षम आंगनवाड़ी का ही इनिशिएटिव है. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 20,263 crore rupees has been allocated. For PM Poshan 10,234 crore rupees has been allocated. Mission Vatsalya 1,472 crores, and for Mission Shakti 3,184 crore rupees has been allocated. So this allocation is important. ठीक है, this amount is important to remember from schemes point of view, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, फेज 1 में तो बहुत ही कॉमन है और सेबी में भी ये पूछा जा सकता है कि कितना एलोकेट अमाउंट किया गया है. ठीक है, नाउ आफ्टर दैट when I talk about the river drinking water, so drinking water के लिए क्या बोल गया? हर घर नल से जल. Now guys, remember one thing, it is not talking about the जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन. It is saying हर घर नल से जल. नल से जल means tap water connection it is basically focusing on. So here it says 60,000 crores is being allocated, focusing the coverage here is targeted at 3.8 crore households
to provide Nal Se Jal, that is tap water connectivity is being focusing here. Then guys, PM Awas Yojana, a very common scheme for providing housing scheme. So here the government says we are focusing on completion of 80 lakh houses and the amount allocated is 48,000 crore. तो बाकी PM आवास योजना हमने काफी बार पढ़ी भी हुई है, ठीक है. We have taken sessions on PM आवास योजना also, so that you guys can watch. और otherwise क्या है, don't worry, जब मैं डिटेल बजट पढ़ाऊंगा ना तो we will have a crisp look at the PM आवास योजना also, ठीक है. Then is guys, the next important here is your PM Divine initiative. It is a new thing that is launched. तो डिवाइन से याद रखना, डिवाइन एनी क्या है, नॉर्थ ईस्ट, बस याद रखो. डिवाइन इज अ रैपर, ठीक है. तो डिवाइन आई थिंक बहुत लोगों ने सुना भी होगा. गली बॉयज आई थिंक डिवाइन पे ही बनी थी, ठीक है. तो वो याद रखना कि गली बॉयज जो डिवाइन है वो गली बॉय कहां पे रहता है, नॉर्थ ईस्ट में रहता है. तो फ्रॉम देयर यू कुड रिमेंबर दिस डिवाइन, ठीक है. नाउ पीएम गति शक्ति की को ही, इट इज बेसिकली फोकसिंग ऑन पीएम गति शक्ति एंड द एलोकेशन हियर इज 1500 करोड़ एंड द पर्पस हियर इज to enable the livelihood abilities as well as filling the gaps in various sectors in the northeastern region. So divine is from northeast, ठीक है. Next is guys a very important announcement, ठीक है. डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइस, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है. काफी लोगों ने किया होगा, ठीक है. तो अब देखो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव क्या बोला. गवर्नमेंट सेज we also want to promote digital currency. So here the government introduces the digital rupee. It says that RBI will be introducing a digital rupee using the blockchain technology, ठीक है. तो जो क्रिप्टो करेंसी लवर हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज है, डिजिटल करेंसी लवर्स के लिए दिस इज अ गुड न्यूज, ठीक है. एंड इट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल, ठीक है. आपके सेबी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज डिजिटल रूपी. नाउ here is the purpose, here is we want a currency management as well as we want to boost the digital economy in India. Along with that, the other specific news regarding to banking sector was that 1.5 lakh post offices, yes guys, 1.5 lakh post offices, they will be provided 100% core banking system, CBS, ठीक है. तो बैंक में you have known about CBS, core banking system or core banking solution. So now it will be provided to 100% around 1.5 lakh post offices. Then for scheduled commercial banks, it says they will be setting up around 75 digital banking units in 75 districts. So this is again important, a trivia that you should remember. कितने banks हैं? 75. So how you could remember? Independence से, ठीक है. So 75 year of independence, 75 districts, 75 digital banking units. To remember this thing. तो ये तो याद हो जाएगा बड़ी easily. Now guys, coming to the third priority, that is productivity enhance and investment as well as focusing on climate resilient things. Now here the first focus was, see the purpose, look at this point, ease of doing business, trust based governance. So government is basically focusing on trust that could be created on as well as providing governance. So governance provide करना चाहते हैं so that एक trust build हो जाए government के ऊपर. Now guys, if I talk about Model Tenancy Act, पिछले साल में मॉडल टेनेंसी एक्ट को अमेंड भी किया गया था एज वेल एज मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में काफी बार न्यूज भी आई थी. सो बेस्ड ऑन दैट थिंग, तो पर्पस क्या था, हम चाहते हैं, और एज वेल एज उसके बारे अगर हम बात किया जाए तो कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली थी लैंड सिस्टम को प्रॉपरली फॉर्मलाइज करने के लिए. बेस्ड ऑन दैट पर्पस दिस यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, they says that now unique land based parcel identification number will be made, that is an IT based management will be done of your land records. So this is the for land purpose. Then guys, CPACE, तो CPACE क्या है, I just discussed with you, ठीक है, मैं लिख के लाया था, तो guys don't worry, ठीक है, I think मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया तो I just read it out, ठीक है. तो CPACE बेसिकली क्या है, it is Center for Processing Accelerator Corporate Exit. Now if I talk about this, यहां से इसको क्यों मैंने CPACE को लिखा है, why I have written this full form,
See, this is how you will be able to easily analyze. The one of the major problem in corporate sector is corporate existency. तो corporate exit कैसे होता है, उसी चीज को इन्होंने यहाँ पे फोकस किया है, यानी कि Center for Processing Accelerator Corporate Exit. How corporate exits could be accelerated. This is what this CPS initiative is done, so that voluntary winding up of companies could be done. This is important. Compulsory नहीं है, it is voluntary to facilitate the voluntary winding up of companies. So ये important point याद रखना. Mark this term important, because if this question is being asked, there is a maximum time they could ask here कि वो compulsory winding up और गवर्नमेंट वाइंडिंग अप, मतलब कंपल्सरी वाइंडिंग अप की बात करेगा तो इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज फोकसिंग ऑन वॉलंटरी वाइंडिंग अप. देन ई-बिल सिस्टम्स वुड बी डन सो दैट श्योरिटी बॉन्ड्स कुड बी डन इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट. Along with that, it says that, now see, as I discussed about technology, it is again focusing on EVCG, that is एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स. तो जितने गेम लवर्स हैं, एनिमेशन लवर्स हैं, तो गाइस आपके लिए भी एक टास्क फोर्स बना दी है गवर्नमेंट ने इन दिस बजट, दैट इज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक ट्रांसपोर्ट. ठीक है जी. उसके बाद 5G सेक्टर को भी PLI स्कीम्स के अंडर इट विल बी मेड अ पार्ट ऑफ PLI स्कीम, एज वेल एज द गवर्नमेंट इज फोकसिंग दैट डिफेंस R&D और इंडस्ट्री स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाए इन द डिफेंस सेक्टर. नाउ हाउ इट विल बी प्रमोटेड, आप सिंपली सोचो, अगर मैं किसी स्टार्टअप को प्रमोट करना चाहता हूं तो स्टार्टअप तभी खोलेगा जब उसको पता होगा कि जो भी मैं बना रहा हूं इट विल बी सोल्ड आउट या इट विल बी टेकन आउट. So for that purpose, this budget says that 68% of capital procurement for the defense budget will be now from domestic industry in 2022-2023. तो 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट कहां से हुई थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री से हुई थी, और इसीलिए गवर्नमेंट इज नाउ लुकिंग एट टू प्रोमोटिंग दी R&D इन दी इंडस्ट्री स्टार्टअप एंड इंडस्ट्री स्टार्टअप रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर. देन गाइस, ई पासपोर्ट की बात हुई थी. यस, अ चिप एम्बेडेड ई पास विल बी इशूड. द गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू फॉर्म दिस थिंग. देन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग सिस्टम, it is trying to implement a town planning scheme as well as transit oriented development program. ठीक है जी. Then a center of excellence will be set up. ठीक है जी. और ये चीज आप पढ़ सकते हो. बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है. वी आर फोकसिंग ऑन EVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काफी गवर्नमेंट फोकस कर रही है, एंड वी आर एज्यूमिंग कि इट विल बी द न्यू रेवोल्यूशन इन दी फॉर्म ऑफ व्हीकुलर इंडस्ट्री, और मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में EV बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. सो फॉर दैट पर्पस द गवर्नमेंट सेज वी आर फोकसिंग ऑन बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी which could be an alternative to charging stations in urban areas. So this is again a new initiative taken by government. Now guys, climate action. तो climate action में important क्या बात हुई थी, 19,500 crores has been proposed for PLI scheme. Now see, production linked incentive scheme. See, this is the important thing. PLI scheme consistently न्यूज में है पिछले कई साल से, पिछले साल 1.5 साल से, बट PLI scheme को यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है. PLI scheme is considered as now a major scheme, और PLI स्कीम में उन्होंने बोला है 19,500 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स विच कुड बी क्लाइमेट इफेक्टिव, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगे वो चीज. देन द पॉपुलर इकोनॉमी, दैट इज द ट्रांजिशंस, दैट इज फॉर सर्कुलर इकोनॉमी. ट्रांजिशंस को इंक्रीज करने के लिए बोला गया कि आप ट्रांजिशंस जो है सर्कुलर इकोनॉमी में इंक्रीज की जाए. उसके अलावा देयर इज टू इंपॉर्टेंट थिंग, the target for solar power installation, it is said that it will be 280 gigawatt by 2030. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. टारगेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस तो बहुत पूछे जाते हैं आपके पेपर में, तो ये याद रखना, फैक्चुअल चीज है, इसमें कुछ रट्टा ही मारना है. ठीक है, 280 by 2030. देन गाइस, फॉर कोल गैसिफिकेशन 4 पायलट प्रोजेक्ट्स विल बी स्टार्टेड, एंड देन इट सेज दैट क्या कहते हैं इसको, फायर 5 to 7%, 5 to 7% जो है वो थर्मल प्लांट्स में बायोमास को यूज करने की बात की गई है. ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए जाएंगे इस बजट में. ठीक है, सो दिस आर प्रपोज हियर. ठीक है जी. आफ्टर दैट इज द फंड एलोकेशन फॉर स्कीम्स. तो बहुत ही कॉमन है यार, ये तो मेरे को लगता है मोस्ट लव्ड पार्ट है. लव्ड पार्ट भी है और बहुत ज्यादा डराने वाला पार्ट भी है. बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अब इसको क्रैम करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा. गाइस, रट्टा तो मारना पड़ेगा, बट यार ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कुछ ही स्कीम्स का मेजर एलोकेशन अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें से पहला है नेशनल हेल्थ मिशन. ठीक है, तो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की बात की है, तो उसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन तो इंपॉर्टेंट है. तो नेशनल हेल्थ मिशन के लिए कितना अमाउंट बोला गया, अराउंड 35,000 करोड़ था जो रिवाइज एस्टिमेट था,
और मॉडर्न जो रिसेंट है वो अराउंड 38,000 करोड़ के अबाउट है। जल जीवन मिशन तो 45,000 करोड़ के अराउंड इट वाज रिवाइज्ड एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट इज अराउंड 60,000 करोड़। नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन मिशन, तो अराउंड 40,000 करोड़ है इसकी बात। ग्रामीण सड़क योजना, सो पीएम आवास योजना, सड़क नेशनल रोडवे से कनेक्ट करो क्योंकि रोडवेज की बात की गई थी, नेशनल नेटवर्क नेशनल हाईवेज की रोड नेटवर्क को कंप्लीट करना है, तो हियर 19,000 करोड़ इज एलोकेटेड। देन गाइस पीएम किसान स्कीम, सो अराउंड 68,000 करोड़ रुपीज विल बी एलोकेटेड, तो ऑलमोस्ट सेम ही है जो इतना पिछली बार था। फॉर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 6400 करोड़ रुपीज एंड स्वास्थ्य योजना इट इज 10,000 करोड़ रुपीज। दिस इज अबाउट दिस बजट एलोकेशन, ठीक है जी। नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फिस्कल मैनेजमेंट, जिसमें वी कैन से इट इज बेसिकली डाटा ऑफ द बजट दैट इज बेसिकली प्रेजेंटेड है। तो फिस्कल मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है। Now when I talk about the first thing here in the fiscal management, that is budget at glance, तो एक चीज बहुत सिंपल है। when I talk about budget, balance of payment, simple is कुछ पैसा आएगा, कुछ पैसा खर्चा जाएगा, that is the simple formula of receipt and expenditure। I think common term है, most of you might know कि revenue budget और capital budget में क्या difference होता है। Then I also discuss with you when it is a short term, आपका पैसा खर्च हो रहा है for a short amount of time, that is regarding 1 year, तो उसको रेवेन्यू में टर्म में बोला जाता है, चाहे वो पैसा है। इफ इट इज कमिंग इन, दैट इज यू आर अर्निंग अ मनी, इट विल बी रेवेन्यू रिसीव्ड, बट इफ यू आर क्रिएटिंग एन एक्सपेंडिचर ओवर देयर, इट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि रेगुलर लेवल है। व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग लॉन्ग, यानी कि ये बजट है, विजन डॉक्यूमेंट है, आप कुछ लॉन्ग टर्म पे प्लान कर रहे हो, इट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल रिसीप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो दिस इज द बेसिक ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू साइड हियर। नाउ डाटा याद रखना, तो देखो ये सारा का सारा डाटा यू डोंट हैव टू क्रैम हियर, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग यू शुड रिमेंबर, data you don't have to cram, just have a basic idea कि what is there, whether it is increasing, decreasing, क्या ट्रेंड है, थोड़ा सा इसका आइडिया ले लो। देन बजट एस्टिमेट कितना है जी, अराउंड 35 लाख करोड़। रिवाइज एस्टिमेट इज अराउंड 30, बजट एस्टिमेट है 35 लाख करोड़ का, तो सॉरी गाइस, ठीक है, और रिवाइज एस्टिमेट है 38 लाख करोड़ का। टोटल एक्सपेंडिचर 40 के अराउंड, यानी 39.5, और यू कैन से 40 लाख करोड़ की बात की है टोटल एक्सपेंडिचर की, और पैसा आया कितना, अराउंड 22.84 लाख करोड़, ठीक है। दैट इज द टोटल रिसीट्स। नेक्स्ट इज द हियर, सी दिस अगेन समथिंग व्हाई आई हैव ब्रॉट दिस स्निपेट हियर इज, दिस इज द मेजर थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर। रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स, सी द पर्पस इज यू शुड नो व्हाट डज दिस मीन। रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपको पता चल जाएगा। नाउ इज द इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट एंड व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द टर्म्स दैट यू गाइस शुड नो। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो, बट देन ऑल्सो सिंपल वी नो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। What is primary deficit? Fiscal deficit minus interest payments will be your primary deficit. Revenue deficit, if revenue expenditure is more than revenue receipt, it will be revenue receipt. It will be revenue deficit. ठीक है। और कुछ revenue deficit when you are using for creation of some assets, it is known as effective revenue deficit. It is known as effective revenue deficit. ठीक है। तो आई थिंक सबकी रिवीजन हो गया। इफ यू डोंट नो देन ऑल्सो गो थ्रू, ठीक है, इसको याद कर लेना, ठीक है, मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, तो इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, व्हाट डज दिस टर्म्स सिग्निफाइज हियर। द नेक्स्ट इज गाइस, दिस डाटा फिर भी याद नहीं करना, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया लेना है। दीज आर ऑल अबाउट आइडिया, आपको एक आइडिया, ब्रीफ आइडिया यू शुड हैव, यू डोंट हैव टू क्रैम दिस डाटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज बीन हाईलाइटेड हियर इन दिस ग्राफिक और इन दिस इमेज हियर इज दैट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर has steepened up. Capital expenditure बहुत ज्यादा हो गया है, it has steepened exactly near about 35.4%, ठीक है, which is around 7.5 लाख करोड़ in 2022-2023, और ये कितना हो गया है, it is accounting to around 2.9% of your GDP. Then there is a new term known as effective capital expenditure, ठीक है, which says it will be around 10.68 lakh crore and it will be contributing about 4.1% of GDP. So guys, effective capital expenditure, जब मैं आपके साथ डिटेल बजट डिस्कस करूंगा तो आई विल डिस्कस दिस टर्म, ठीक है। बट इफ यू गाइज नो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। डू लेट मी नो,
Otherwise, I will discuss the term with you in the detailed budget video. Then is guys deficit. तो देखो deficit में this graph is important for you. Here you are basically getting the basic analysis of each and every deficit. Fiscal deficit estimate कितना गया है? That is revised estimate is 6.9%. Budget estimate is 6.4%. Similarly, effective revenue deficit that you other can have a look. तो इस सबको देख लेना. This is important for you. Now, fiscal deficit, as I've discussed, it says fiscal deficit in current year is around 6.9%. Current year में 6.9%. That is your current year of 2021-2022. It is expected कि budget estimate कितना किया गया 6.4% इसका. That is this thing. Now, the next thing is about sources of deficit financing, guys. This is again a very important thing. It will give you basically brief idea कि sources कहाँ से deficit financing आ रही है. Now, how to read this here? You just have to analyze that what this data, whether market borrowing is more, external commercial borrowing is more, provident funding. So there also you should know you just have to get the idea. Don't cram each and every data. डाटा क्रैमिंग नहीं करनी, आपको आइडिया लेना है और आपको उस बेस पे यू हैव टू मेक योर नोट्स कि किसकी बोरोइंग ज्यादा है. दिस इज व्हाट यू हैव टू एनालाइज हियर. आपको सारा डाटा नहीं याद करना कि 6 लाख है 4 लाख है, ऐसे नहीं याद करना. दिस इज वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू शुड रिमेंबर. ठीक है जी. देन इज द लास्ट थिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट. देखो यही चीज काफी हद तक फिस्कल मैनेजमेंट से भी रिलेट करती है, बट स्पेसिफिकली व्हेन आई टॉक अबाउट फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट तो यहां पे बात की गई थी प्रोवाइडिंग ग्रेटर फिस्कल स्पेस टू स्टेट्स. तो इसका मतलब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि स्टेट्स को ज्यादा से ज्यादा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा सा गवर्नमेंट दे वांट दैट मोर मनी शुड बी देयर इन द फॉर्म ऑफ स्टेट्स के पास ज्यादा मनी हो. तो कैसे है ये चीज? इसको कैसे किया? गवर्नमेंट सेज दैट दे हैव रिड्यूस द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्टेट्स which was 4.6%. अब उसको 3.7% पे कम कर दिया गया, सो दैट स्टेट शुड हैव मोर फंड. आप चाहते हो स्टेट इन्वेस्ट ज्यादा करे. ठीक है. allowing fiscal deficit of 4% which will be 0.5%. जहां से आप कहा चाहते हो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पे हो, तो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पे from 4% 0.5% will be there. And here is the amount that has been allocated to the states by the center. So ये अमाउंट है दैट यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया. तो ये याद रख लेना. ठीक है कि कितना है, इजी टू रिमेंबर है, अराउंड 16 लाख करोड़ 16.12 इज एस्टिमेटेड, और रिवाइज भी कितना है अराउंड 16.03. तो दिस इज समथिंग ट्रिकी बट गाइस डू रिमेंबर, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर भी. ठीक है जी. नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सेशन इज द टैक्सेशन सेक्टर. तो टैक्सेशन आई थिंक जिसपे इफ यू आर अ सर्विस क्लास, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ सर्विस क्लास पता क्या होता है, बिकॉज आई कैन रिलेट टू इट. मेरे मदर फादर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो पूरा बजट में ना माय मदर एंड माय फादर उनका प्राइम फोकस टैक्सेशन पे होता है कि क्या इनकम टैक्स स्लैब बढ़ी है, इनकम टैक्स स्लैब कम हुई है. ठीक है. तो वही चीज है जी टैक्सेशन में क्या हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दिस टैक्स रिसीप्ट और ट्रेंड्स इन टैक्स रिसीप्ट. तो टोटल ग्रॉस टैक्स रिसीप्ट इज अराउंड, इट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 10.7%. रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना है 10.8%. डायरेक्ट टैक्स इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 5.4% इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, बट इट इज एस्टिमेटेड कितना होगा 5.5% आपको डायरेक्ट टैक्स से आएगा एंड 5.2% इज फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स. तो दिस इज वन थिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट. इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है पर उसमें जो टैक्स कंप्लायंस है वो कितना कम है. देखो सिर्फ 10.7% ऑफ जीडीपी ही जो है हमारा टैक्सेशन सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है. लेट अस सी कि क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस हुई. सबसे पहले था जी अपडेटेड रिटर्न. तो अपडेटेड रिटर्न का मतलब क्या है? If you guys feel that it is provision of updating your return on payment of some additional tax if you want to pay, so that can be filed within 2 years. Then is virtual digital assets. तो ये एक चीज थी जहां पे आके मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं. तो जब आरबीआई की न्यूज आई कि डिजिटल करेंसी प्रमोट हो गई है तो दे वर हैप्पी, बट जब ये न्यूज आई दे वर लिटिल बिट, ठीक है, शॉक हो गए थे कि थोड़ा सा टेंस हो गए थे कि क्या हुआ. तो हुआ क्या है जी, 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा ऑन द डिजिटल एसेट्स, ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ डिजिटल एसेट्स 30% ऑफ टैक्स हैज टू बी डन हियर. ठीक है जी. कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे क्या बोला गया है, ऑल्टरनेट एमएटी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो है उसको रिड्यूस किया गया है फ्रॉम 18.5% टू 15%. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. 18.5 से कितना कर दिया गया है जी, 15% जो है उसको कर दिया गया है. देन इज सरचार्ज.
So surcharge on cooperative societies has also been reduced. It has been reduced from 12% to 7%. Now here is one thing important. किसका reduce किया 12% to 7%? Whose total income is guys more than rupees 1 crore and it is up to 10 crore. So this is very important information जो आपको याद रखनी है. Surcharge तो it has been reduced, but it is reduced for those persons जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है. So this is the purpose of the surcharge. Then is guys national pension scheme contribution. It says now that the employers contribution will be increased from 10% to 14% for tax deduction limit. So this is an increase for the employers contribution. फिर स्टार्टअप्स के लिए क्या बोला है उन्होंने बोला है अगर आप नया स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हो दैट इज पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 1 year व्हिच वाज अर्लियर टिल 31st of March 2022. नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31st of March 2023. फिर एक टैक्स रिजाइम की बात की गाइस. डोंट वरी दिस सेक्शन तो आपको याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कितना इनहांस हुआ है 31st March 2023 से 31st March 2024 जो किसके ऊपर है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन. तो आपको सेक्शन नहीं याद रखना, दैट माइट नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. देन द रैशनलाइजेशन ऑफ सरचार्ज. तो सरचार्ज पे क्या किया गया है जी, सरचार्ज को जो एओपीस हैं उनके ऊपर 15% जाके कैप कर दिया गया 15% के ऊपर. एंड ऑन एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन द एसेट्स आर कैप्ड एट 15%. सो फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद रखनी है. डोंट गेट इनटू द निटी-ग्रिटी, बस आपको फैक्चुअल चीजें याद रखनी है. हेल्थ और एजुकेशन सेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो बोली गई थी कि अगर आप एनी सरचार्ज और सेस ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स दे विल नाउ नॉट बी अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर. तो ये जो कोई भी आप सरचार्ज ले रहे हो इनको बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह अलाउ नहीं किया जाएगा. देन इज गाइस इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल. तो क्या होगा, कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना चाहते हो. द मॉडरेट टैरिफ विल बी ऑफ 7.5%. ठीक है. अनब्लेंडेड डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी चाहते हो. कस्टम रेट्स कैलिब्रेशन यानी कि ग्रेड रेटिंग स्ट्रक्चर होगा टू फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग. देन इज देयर विल बी रैशनलाइजेशन ऑफ एग्जम्पशंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है. तो दिस यू गाइस कैन हैव अ लुक आउट. ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया कि क्या क्या चीजें इनडायरेक्ट टैक्स में लॉन्च की गई है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बजट सेशन गाइस. आई होप यू लाइक इट. तो बेसिकली क्रिस्प फॉर्म में हमने इस पूरे बजट को एनालाइज किया है. ठीक है. Then also guys I am saying you again कि detailed video of this budget I will be coming up with a detailed video within a coming week. ठीक है. तो detailed video डिस्कस करेंगे. जो स्कीम्स यहाँ पे मेंशन की हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि उन स्कीम्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो आप याद कर सकते हो. So I hope guys this lecture was fruitful to you. So keep learning. Bye bye.